Hello everyone and welcome all of you in second lecture of thermodynamics. In previous lecture we have already studied about some concepts in thermodynamics. That is, what do you mean by system, what are the different types of system. There are three types of system now: open system, closed system and isolated system. Then properties, extensive properties, intensive properties. Then what do you mean by state function, what do you mean by state of a system, and so on. In today's lecture we are going to study about the remaining concepts in thermodynamics. That is, first concept in thermodynamics is process. Process means suppose it is the initial state of system. Suppose it is any gas or any reaction mixture, and this reaction mixture is under thermodynamic study, then we call it as a system. Okay, and this is the initial state of system, means in this case this system has certain value of temperature, it has certain pressure, it has certain volume, it has certain number of moles. Okay, इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट है तो यहाँ पे सिस्टम का अपना एक टेम्परेचर है, इट हैज़ सर्टन वॉल्यूम, इट हैज़ सर्टन प्रेशर, उसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं. ओके, नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम. So these both states are different, means there is some difference in thermodynamic parameters obviously. So this state of system, final state of system and initial state of system, इन दो state का सभी parameters equal नहीं रहते हैं. It is already studied yesterday. Okay, by changing one of the parameter we can change the state of a system. Simply दोनों स्टेट का रिमेनिंग थ्री पैरामीटर्स अगर इक्वल है, फिर भी टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है तो भी दोनों सिस्टम की स्टेट अलग है. सो दिस इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, दिस इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, एंड दिस इज़ प्रोसेस ना, अपने को प्रोसेस पढ़ना है. ओके, प्रोसेस मीन्स सपोज इनिशियली the temperature of this system in initial state, the temperature of system is 25 degrees centigrade, and we have to increase its temperature up to 30 degrees centigrade. This is the temperature of system in initial state and this is the temperature of system in final state, means we have to increase the temperature by 5 degrees centigrade. So I have many options to increase the temperature of this system by 5 degrees centigrade. I can simply heat this system by providing electric current, or I can simply heat this system by providing heat directly. इस सिस्टम को बर्नर के ऊपर रख दूंगी तो भी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना. मीन्स वी हैव डिफरेंट पाथ्स बाय विच द सिस्टम changes, by which the system can change from initial state to final state. So that path or operation is known as process. इसी को बोलते हैं प्रोसेस. ये जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग पाथ बोल रहे हैं. पाथ या फिर ऑपरेशन, ऐसा रास्ता जिस रास्ते से होके सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करती है, उस रास्ते को बोलते हैं प्रोसेस. व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? द पाथ और ऑपरेशन बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आते वक्त वो जिस रास्ते से होके जाती है, दैट रास्ता, दैट पाथ, दैट ऑपरेशन इज नोन एज प्रोसेस. सो व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? इट इज़ द पाथ और ऑपरेशन बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम initial state to final state. Now there are different types of processes. Actually there are 6 to 7 types of processes. We will study one by one. First is the isothermal process, second one is isobaric process, third one is isochoric process, fourth one is adiabatic process. In this name, that is isothermal, iso stands for constant, constant or same. Same दिख रहा है क्या? ये सेम लिख रही हूँ मैं. सेम, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और सेम, एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर. सो एनी प्रोसेस इन विच इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस मीन्स इट इज़ अ सर्टन पाथ और सर्टन ऑपरेशन by which a system changes from initial state to final state, and during that change if the temperature of the system remains constant, वो change होते वक्त अगर temperature constant होता है, जैसे यहाँ पे था,
ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। व्हेन सिस्टम ने जब अपनी स्टेट चेंज की उस वक्त अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, इट इज़ स्टिल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अभी भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. Such process is known as isothermal process. So what do you mean by isothermal process? Process in which during which the temperature of the system remains constant, that is the process which takes place at constant temperature is known as isothermal process. So for isothermal process, temperature is constant, and if any term is constant, जब भी कोई टर्म कांस्टेंट होती है, देन इट्स डिफरेंस मस्ट बी ज़ीरो. तो उसका सॉरी ये भी नहीं टी है, देन इट डिफरेंस मस्ट बी ज़ीरो. जैसे इनिशियल टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑब्वियसली ज़ीरो. सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. नाम से समझ में आता, आइसो मीन्स सेम और कॉन्स्टेंट एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर. when the process takes place and during that process when the system changes from initial state to final state, during that process if the temperature of the system remains constant, then that process is known as isothermal process. For example, boiling of water, we know that water takes 100 degree centigrade to boil, but when it starts boiling, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद बॉयल होना स्टार्ट होता है, बट ड्यूरिंग बॉइलिंग जब तक वो बॉयल होते रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस. जब भी वो बॉइलिंग की प्रोसेस शुरू रहती है वाटर की, उस वक्त उस वो पूरी प्रोसेस होने तक वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट होता है and as pressure is constant, its difference must be zero, that is delta P equal to 0. The process during which pressure of the system remains constant, when system changes from initial state to final state, during that change if the pressure of system remains constant, then that process is known as isobaric process. For example, all the chemical reaction taking place in laboratory in the open beaker under atmospheric pressure, कोई भी ओपन बीकर में हम लोग जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है. प्रेशर किसका होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर. ओके, 1.013 बार होता है, वो इक्विवेलेंट ही है. मतलब वो जो प्रोसेस हो रही ओपन बीकर में वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही, हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे. एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. मीन्स दैट प्रोसेस takes place at constant pressure. That process is known as isobaric process. So what do you mean by isobaric process? The process which takes place at constant temperature, that is the process during which if the pressure of the system remains constant, जब भी वो process हो रही है, जब भी वो reaction complete हो रही है, उस पूरे reaction complete होने तक उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एंड एज अ रिजल्ट डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, मस्ट बी ज़ीरो. वॉल्यूम चेंज ज़ीरो रहेगा. मीन्स द प्रोसेस इन विच volume of the system remains constant, that is when the process takes place, that is when the system changes from initial state to final state. During that change if the volume of the system remains constant, जब भी कोई reaction हो रही, for example if the chemical reaction takes place in a perfectly closed beaker, perfectly closed beaker अगर है वो है, तो वो जो reaction हो रही या फिर कोई भी वाटर बॉयल हो रहा है या फिर कोई रिएक्शन हो रही, तो जो वेपर्स निकलेंगे वो वेपर्स दीज वेपर्स रिमेन्स इन द बीकर, दे कैनॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा क्लोज होने की वजह से, तो जिसके वजह से उसका वॉल्यूम तो एज इट इज़ रहेगा. वेपर्स है, वेपर्स ऑब्वियसली वो ऊपर रहेंगे, उसके बाद जैसे ही ठंडे हो जाएंगे, वेपर्स ठंडा होता है तो वो कंडेंस होके नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा ना. So such process is known as isocoric process, the process in which volume of the system remains constant. For example, all the reaction taking place in perfectly closed beaker are isocoric processes. Next one is adiabatic process. Adiabatic process means in which Q equal to 0. Small q is the representation of heat. Heat is represented by the symbol small q, and Q is 0. Q is 0 means when the process takes place, ये कोई तो भी प्रोसेस है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ द सिस्टम
does not exchange its heat with the surrounding. During that process, if the system does not exchange its heat with the surrounding, means it cannot lose its heat to the surrounding or it cannot gain heat from the surrounding. वो सराउंडिंग को हीट देगी भी नहीं, सराउंडिंग से हीट लेगी भी नहीं, then that process is known as adiabatic process. What do you mean by adiabatic process? The process during which no exchange of heat takes place between system and surrounding. जब भी ये सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रही, कुछ तो भी प्रोसेस हो रही और ये सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रही, फाइनल स्टेट में जा रही, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट पाथ, ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन, इफ़ दिस सिस्टम, ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगी भी नहीं और सराउंडिंग को हीट देगी भी नहीं, अपनी हीट सराउंडिंग को नहीं देगी, सराउंडिंग से कोई हीट नहीं लेगी, मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सच प्रोसेस इज नोन एज adiabatic process. What do you mean by adiabatic process? The process in which system does not exchange its heat with the surrounding is known as adiabatic process. So for adiabatic process, Q equal to 0. Okay. So these are isothermal process, temperature remains constant, isobaric process, pressure remains constant, isochoric process, volume remains constant, and in adiabatic process no exchange of heat takes place between system and surrounding. System और surrounding के बीच में कोई heat transfer नहीं होगा. That's why for adiabatic process Q is equal to 0. Next process is, okay, we have to first study the difference between isothermal and adiabatic process. Difference between isothermal and adiabatic process. First difference is obviously the definition of isothermal process, that is temperature remains constant. If temperature remains constant, delta T equal to 0. And in adiabatic process obviously temperature does not remains constant. Temperature constant नहीं रह सकता because जैसे adiabatic process में heat exchange नहीं होती, right? और heat exchange कहाँ पे नहीं होती? If the system is isolated, we have already studied, if the system is isolated, अगर system isolated है, perfect isolation है, then the system cannot exchange its heat with the surrounding. ये अपनी heat surrounding के साथ exchange नहीं करती. Okay, I am talking about isolated system. This system is isolated system, means this system cannot exchange its heat as well as matter with the surrounding. और यहाँ पे अब कुछ तो भी हो रहा है, रिएक्शन हो रही कोई तो भी, एंड सपोज इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व. ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है. तो यहाँ पे अगर हीट इवॉल्व होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इंक्रीजेस. सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और ये अपनी इंक्रीज हीट, इट कैनॉट एक्सचेंज इट्स इंक्रीज हीट विद द सराउंडिंग. ये सराउंडिंग के साथ अपनी बढ़ी हुई हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकती ये सिस्टम, बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड. दैट्स वाई ऑब्वियसली द टेम्परेचर ऑफ दिस ओवरऑल सिस्टम इंक्रीजेस. इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि सिस्टम अपनी हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकती. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इंटरनल एनर्जी. Internal energy is one of the thermodynamic parameter. We have to see it later actually. अपने को ये बाद में देखना है कि ये होता क्या है इंटरनल एनर्जी. फिलहाल इतना समझ लो कि इंटरनल एनर्जी इज़ the function of temperature. It depends upon temperature. Internal energy is a function of temperature. It depends upon temperature and it is directly proportional to temperature. That is, if temperature increases, internal energy increases. If temperature decreases, internal energy decreases. And if temperature remains constant, internal energy also remains constant. That's why in isothermal process, internal energy also remains constant. Internal energy is denoted by the symbol capital U or capital E. And if internal energy is 0, then its difference must be 0. Exactly reverse in this case, that is internal energy does not remains constant because in adiabatic process temperature does not remains constant. Adiabatic process में temperature constant नहीं रह सकता. That's why internal energy भी constant नहीं रहेगी. That's why delta U is not equal to 0. Third point of difference is the definition of adiabatic process, that is the system cannot exchange heat with the surrounding. System अपनी heat surrounding के साथ exchange नहीं कर सकती. And in isothermal process system has to exchange its heat with the surrounding. System को अपनी heat को surrounding के साथ exchange करना पड़ेगा to maintain the temperature constant. फिर से यहाँ पे आओ, ये system है अपनी एक, right?
अब यहाँ पे ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकती, आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कैसे समझेगा? ओके, सपोज इट इज़ क्लोज और ओपन सिस्टम. Okay, closed system means in which heat can be exchanged, matter cannot be exchanged. Open system means in which both matter and heat can be exchanged. So it is closed system. Suppose open भी रह सकती है, ठीक है. अब यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही फिर से. Suppose this reaction is again exothermic. Exothermic means when this reaction takes place, heat is evolved. Heat evolve होगी, और अगर heat evolve होगी तो obviously उसका temperature increase होगा, and we have to maintain the temperature constant. We have to bring this process isothermally. We have to carry out this process isothermally. अपनों को इस प्रोसेस को, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इसको आइसोथर्मली करना है. मीन्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. और ये अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट तो इवॉल्व होगी, एंड इफ हीट इज इवॉल्व ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज. सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अपने को सिस्टम का टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन इट कांस्टेंट. फॉर दिस पर्पज सिस्टम हैज़ टू एक्सचेंज इट्स हीट विद द सराउंडिंग. सिस्टम को अपनी हीट सराउंडिंग को देनी पड़ेगी टू मेंटेन द टेम्परेचर constant. Means in adiabatic process system cannot exchange its heat, but in isothermal process system has to exchange its heat. System को अपनी heat surrounding के साथ exchange करनी ही पड़ेगी so that its temperature remains constant, ताकि उसका temperature constant रहे. Okay, next difference is obviously this is not thermally isolated. In isothermal process system is not thermally isolated, क्योंकि अगर ये thermally isolated है तो heat को exchange नहीं कर पाएगी, और हीट को तो उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट. एंड इन दिस केस सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड. सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड बिकॉज इन दिस प्रोसेस हीट कैनॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अपने को अगर इस प्रोसेस को एडियाबैटिकली करनी है तो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देना है. और हीट कहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती? वेयर द सिस्टम इज आइसोलेटेड. व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड, जब सिस्टम आइसोलेटेड होती है तब हीट एक्सचेंज नहीं होती. So in this case, in adiabatic process system is thermally isolated. Next point of difference is obviously isothermal process takes place in open or closed system, because we have to exchange heat with the surrounding to maintain the temperature constant. इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हीट को एक्सचेंज करना पड़ेगा सराउंडिंग के साथ. और हीट कहाँ पे एक्सचेंज होती है? इन ओपन सिस्टम एंड इन क्लोज सिस्टम. सो ऑल द आइसोथर्मल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस आइदर इन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. And in adiabatic process, obviously adiabatic process takes place in isolated system, because in adiabatic process no exchange of heat takes place between system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. और कौन से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता? इफ़ द सिस्टम इज आइसोलेटेड. मीन्स इफ़ वी हैव टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस एडियाबेटिकली, वी हैव टू कैरी आउट इन isolated system. So these are the different points of differences of isothermal and adiabatic process. Next is cyclic process. Cyclic process means, suppose it is the initial state of system, by doing certain operation it changes to state 2. सेकेंड स्टेट पे आ गई. कुछ तो भी डिफरेंस हो गया, थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज हो गए, सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, राइट. बाय डूइंग अगेन सर्टन ऑपरेशन सिस्टम चेंजेस टू स्टेट 3. फिर से कुछ तो भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर में डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर प्रेशर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, अगेन सिस्टम चेंजेस इट स्टेट. अगेन बाय डूइंग सर्टन ऑपरेशन इट चेंजेस टू स्टेट 4. अगेन बाय डूइंग सर्टन ऑपरेशन इट चेंजेस टू स्टेट 1. फिर से वो फर्स्ट स्टेट पे आ गई, इनिशियल स्टेट पे आ गई. मतलब जैसे उसके पैरामीटर्स फिर से इसके जैसे हो गए, वो वापस अपनी जगह पे आ गई. सो दिस प्रोसेस, सच प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. दैट इज द प्रोसेस इन विच ए सिस्टम आफ्टर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, एक से ज़्यादा पाथ को फॉलो करेगी, आफ्टर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, इज नोन एज cyclic process. What do you mean by cyclic process? The process in which system after a series of operations, more than single operation, and if it return back to the initial state, then it is called as cyclic process. Means in cyclic process the initial state and final state are same. इसका मतलब cyclic process में initial state और final state same रहेगी. For example, a well known example is ice. Ice on heating changes into water. आइस को हीट करते तो ऑब्वियसली चेंजेस इनटू वाटर, वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वाटर वेपर.
वेपर्स ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू अगेन वाटर एंड वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस। सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गई, यहाँ से स्टार्ट किया था वापस यहीं पे आ गई। सो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज cyclic process. So what do you mean by cyclic process? The process in which a system after a series of operation return back to the initial state is known as cyclic process. Next process is reversible and irreversible process. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके सुनो, इसके ऊपर डेरिवेशन वगैरह है। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स suppose it is system, suppose it is any reaction mixture, or suppose it is a cylinder in which gas is enclosed, in a cylinder. That gas enclosed in a cylinder is under thermodynamic study, therefore that gas is system for us, वो अपने लिए system है, right? So it is system, it is surrounding, ये surrounding है, जो remaining part है यूनिवर्स का other than system is known as surrounding. सिस्टम का अपना कुछ फोर्स रहेगा, गैस का कुछ फोर्स रहेगा ना, उसके पास कुछ प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा. फोर्स ऑफ सिस्टम इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स एंड फोर्स ऑफ सराउंडिंग इज नोन एज अपोजिंग फोर्स. सराउंडिंग भी तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी सिस्टम के ऊपर, उस गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी. दैट फोर्स इज नोन एज अपोजिंग फोर्स. द फोर्स ऑफ सिस्टम इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स एंड फोर्स ऑफ सराउंडिंग इज नोन एज अपोजिंग फोर्स. सपोज द ड्राइविंग फोर्स इज 1 न्यूटन and opposing force is again 1 Newton. दोनों का फोर्स इक्वल है सपोज. देन व्हाट हैपन्स टू गैस? गैस विल नाइदर कॉम्प्रेस नॉर एक्सपैंड. गैस का एक्सपांशन नहीं होगा, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा. गैस का कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज भी नहीं होगा. देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ना. बॉयल्स लॉ वगैरह पता है तुम लोगों को? जैसे इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गैस, व्हाट हैपन्स टू इट्स वॉल्यूम? उसका वॉल्यूम तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा. When we decrease the pressure of gas, its volume increases. मतलब गैस का एक्सपांशन होता है, गैस का कॉम्प्रेशन होता है, डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, फोर्स डिफरेंस के ऊपर. इफ़ फोर्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम, दोनों साइड का फोर्स अगर इक्वल है, गैस और उसके ऊपर जो एटमोसफियर है उसका प्रेशर भी, इफ़ द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स बोथ आर इक्वल, देन नथिंग विल हैपन विद द गैस. इट नाइदर एक्सपांड नॉर कॉम्प्रेस. उसका ना एक्सपांशन होगा ना कॉम्प्रेशन होगा. बट इफ़ द अपोजिंग फोर्स इज 0.9 न्यूटन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिंग फोर्स इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द, और इन्फिनिटिसिमली ऐसा एक वर्ड यूज़ होता है इसमें, स्लाइटली भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटिसिमली स्मॉलर दैन द अपोजिंग फोर्स. अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इज मोर दैन द अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट सिस्टम अंडरगोज एक्सपांशन. गैस का क्या हो जाएगा? एक्सपांशन हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट? नाउ अब अपने को क्या करना है? रिवर्सिबल प्रोसेस है ये. रिवर्सिबल प्रोसेस में वी हैव टू कीप द डिफरेंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटिसिमली स्मॉलर. स्लाइटली स्मॉलर रखना है डिफरेंस. किसके बीच का? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. देन एंड देन ओनली वी कैन रिवर्स द प्रोसेस. तभी हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते. फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ ये? सो if we increase this opposing force by infinitesimally small value, suppose we increase this force, opposing force to 1.1 Newton. Driving force is 1 Newton, opposing force is 1.1 Newton. अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है, ड्राइविंग फोर्स कम है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज. दैट इज़ गैस का हो जाएगा कॉम्प्रेशन, गैस का कॉम्प्रेशन हो जाएगा. इफ़ वी अगेन इंक्रीजेस इट्स प्रेशर बाय इन्फिनिटिसिमली स्मॉल वैल्यू, दैट इज़ 1.2, गैस का फिर से कॉम्प्रेशन हो जाएगा. और अगर हम लोग 1.2 से 1.1 पे आ जाएंगे वापस से, फिर से थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे तो गैस का फिर से एक्सपांशन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स इक्वल है, नथिंग विल हैपन विद द गैस. कुछ भी नहीं होगा, ना एक्सपांशन ना कॉम्प्रेशन. अब अगर ड्राइविंग फोर्स 1 न्यूटन है और अपोजिंग फोर्स अगर 1.1 न्यूटन है सपोज, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपोजिंग फोर्स को
थोड़े थोड़े अमाउंट से इंक्रीज करते करते जा रहे हैं। मतलब सराउंडिंग का प्रेशर अगर इंक्रीज होते जाएगा, व्हाट हैपन्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, मतलब उसका कॉम्प्रेशन होते जाएगा, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा, उसका कॉम्प्रेशन होते जाएगा। अगेन वी इंक्रीजेज द फोर्स, अपोजिंग फोर्स बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू दैट इज 1.2 न्यूटन। अगेन गैस विल कॉम्प्रेस, फिर से गैस का कॉम्प्रेशन हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो रहा है। ओके अगर मैंने फिर से इंक्रीज कर दिया इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू से, फिर से इंक्रीज कर दिया, सॉरी डिक्रीज कर दिया, 1.2 से 1.1 कर दिया, तो अब क्या होगा, गैस का फिर से एक्सपांशन हो जाएगा। मतलब ऐसी आ रही थी प्रोसेस, अब ऐसी हो जाएगी, होगी रिवर्स। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। अब देखो फिर से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 1.3 हो जाएगा। अगर 1.3 हो जाएगा, प्रेशर और फोर्स ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस, देन गैस अगेन कॉम्प्रेसेस, गैस का फिर से कॉम्प्रेशन हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, 1.2 कर देंगे, गैस फिर से एक्सपांड हो जाएगी, फिर से प्रोसेस रिवर्स होगी। तो सच प्रोसेस इज नोन एज reversible process. So care should be taken here is that the difference between the force, difference of force between the system and surrounding must be infinitesimally smaller, then and then only we can reverse the process. यहाँ पे अपने को केयर रखनी है, केयर करनी है। जैसे we can bring about the process reversibly और irreversibly, दो वेज से हम लोग प्रोसेस को कर सकते हैं। रिवर्सिबली भी कर सकते हैं, इरिवर्सिबली। इफ़ वी हैव टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस रिवर्सिबली, वी हैव टू मेंटेन द डिफरेंस वेरी स्मॉल बिटवीन द फोर्स, फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसका डिफरेंस बहुत कम रखना है। देन एंड देन ओनली वी कैन रिवर्स द प्रोसेस, तभी हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। सो हाउ कैन इट डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस इन विच opposing force is infinitesimally smaller than the driving force. The process in which opposing force is infinitesimally smaller than the driving force. बहुत कम अमाउंट से कम रखना है, so that इन्फानिटिसिमल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स, जिसके वजह से अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे अपोजिंग फोर्स को, द सिस्टम कैन रिवर्स, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, सॉरी प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। सो सच प्रोसेस इज नोन एज reversible process. What do you mean by reversible process? The process in which opposing force is infinitesimally smaller than the driving force, बहुत कम डिफरेंस है दोनों के बीच का, such that an infinitesimal increase in opposing force, डिफरेंस कम है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स को, ओके, so that an infinitesimal increase in opposing force can reverse the process, प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। So such process is known as reversible process. Exactly reverse is the case, irreversible process. This is again system, its force is known as driving force. This is surrounding, its force is known as opposing force. If the force, driving force and opposing force are equal, then nothing will happen with the gas, it will neither compress, it will neither expand. Now we have to bring about this process irreversibly. अब अपने को यहाँ पे जो भी compression करना है गैस का या फिर एक्सपांशन करना है, इरिवर्सिबली करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू मेक द डिफरेंस लार्ज, दैट इज अपोजिंग फोर्स इज सपोज 1 न्यूटन एंड ड्राइविंग फोर्स इज सपोज 2 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स अब 2 न्यूटन है, अपोजिंग फोर्स अब 1 न्यूटन है। ओके अब क्या हो रहा है, अपोजिंग फोर्स कम है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली गैस का एक्सपांशन हो जाएगा, गैस का एक्सपांशन हो गया। ओके गैस का यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है क्योंकि अपोजिंग फोर्स इज स्मॉलर दैन द ड्राइविंग फोर्स। सिस्टम का फोर्स ज़्यादा है, गैस का फोर्स ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो ऑब्वियसली गैस का एक्सपांशन हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इफ़ वी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, सेम यहाँ पर करेंगे। इफ़ वी इंक्रीज द अपोजिंग फोर्स बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू 1.1, व्हाट हैपन टू द गैस? नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 न्यूटन है, अभी भी ज़्यादा है। फिर से इंक्रीज करेंगे, 1.2 कर दिया, व्हाट हैपन विद द गैस? कुछ भी नहीं होगा। फिर से इंक्रीज कर दिया, 1.3 कर दिया, व्हाट विल हैपन विद द गैस? गैस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये अभी भी एक्सपांड करेगी क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग अगर इसका इंक्रीज करेंगे या फिर थोड़े से अमाउंट से डिक्रीज भी कर देंगे, नथिंग विल हैपन विद द गैस, गैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब वो एक्सपांड हो रहा है तो वो एक्सपांड ही होते रहेगा, कॉम्प्रेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था,
ये वाले केस में कॉम्प्रेस हुआ था क्योंकि डिफरेंस बहुत कम था। यहाँ पे इस केस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते बाय इन्फिनिटेसिमली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स। सच प्रोसेस इज नोन एज irreversible process. How can you define irreversible process? The process in which opposing force is much smaller than the driving force. बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अमाउंट से कम है, ओके, मच स्मॉलर दैन द अपोजिंग फोर्स सच दैट एन इन्फिनिटेसिमल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स कैनॉट रिवर्स द प्रोसेस। इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज कर रहे हैं अपोजिंग फोर्स को तो भी प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रही, इट्स स्टिल एक्सपांड। गैस का अभी भी एक्सपांशन ही हो रहा है, उसका कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा है। सो सच प्रोसेस इज नोन एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स वी कैन ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस आइदर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। दो ऑप्शन है आपके पास, हम लोग रिवर्सिबली कर सकते हैं, इरिवर्सिबली कर सकते हैं। अगर रिवर्सिबली करना है तो प्रेशर डिफरेंस बहुत कम रखना पड़ेगा। वी हैव टू maintain the difference of force between system and surrounding to very small amount। बहुत कम अमाउंट रखना पड़ेगा, डिफरेंस बहुत छोटा रखना पड़ेगा so that the process can be reverse, ताकि एक्सपांड हो कॉम्प्रेस हो, एक्सपांड हो कॉम्प्रेस हो। हम लोग किसी भी पॉइंट पे प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। 1.1 से 1.2 आ गया यहाँ पे, हाँ पहले वाले केस में 1.1 से 1.2 पे आ गया तो कॉम्प्रेस हो गया, 1.2 से 1.1 आ गया तो वापस एक्सपांड हो गया, ओके मतलब इस प्रोसेस को हम लोग इजीली रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोग प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। सो रिवर्सिबली करना है तो डिफरेंस कम रखना है, अब इरिवर्सिबली करना है तो इस मेंटेन करना है बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। सो दिस इज़ अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन टुमारोज लेक्चर वी हैव टू स्टडी द डेरिवेशन, सम डेरिवेशंस ऑफ वर्क डन। ये जो प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, इट विल बी क्लियर टुमारो। वो डेरिवेशन से दो एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट डेरिवेशंस। सो वी विल मीट टुमारो, टिल देन गुड बाय।